Hello students, welcome to the Gyanpunj Academy online video classes conducted by Gyanpunj School, Senior Secondary School, Bansi Bazaar, Balia. Honorable Principal Ma'am, Mrs. Sudha Pandey, has given opportunity to me to share the topics related to the NCERT based classes related to the subject Bio. Myself, A.K. Pandey, Bio TGT, going to share a video that is the first chapter, life process, topic stomata. Now, the topics covered in this video are stomata, the structure of stomata, function of stomata, guard cells, state of guard cells, that is the turgid and the flaccid. We will discuss later on the states of the guard cells, structure and function of the guard cells, and the last, mechanism of working of stomata and the guard cells. Now, stomata. As you know, in the higher plants, the process of respiration is going through about the stomata. Stomata are small tiny pores, cell structures present on the surface of leaves. They are also present on the stems. Their location present in the epidermis of leaves and the stems. जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टोमेटा बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं. इनका जो लोकेशन होता है, बेसिकली लीव्स का जो एपिडर्मिस सेल होता है, ठीक उसके बिलो ये पाए जाते हैं. जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं. ओके. Now, the guard cells. The guard cells are the specialized plant cells in the epidermis of the leaves, stems, etc. that surrounds the stomatal pores. Guard cells एक ऐसे specialized structures होते हैं, वो भी epidermis cells के, जो basically leaf और stems में पाए जाते हैं. बेसिकली दे सराउंड द स्टोमेटल पोर्स. इनका काम होता है स्टोमेटल पोर्स को कवर करना. नाउ द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द इट रेगुलेट्स द CO2 इनफ्लक्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लीव्स फॉर कार्बन फिक्सेशन. गार्ड सेल्स जो होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्स करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दे एब्जॉर्ब्स, एंड दैट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फूड, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड पॉइंट, it regulates the loss of water in plants via transpiration to the atmosphere. बेसिकली इसका मतलब यह है कि गार्ड सेल्स कार्बन के फिक्सेशन के साथ साथ वाटर के लॉस को भी रेगुलेट करते हैं. जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यू ऑल नो दैट द ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस through which the excess loss of water can be done. So, guard cells regulates the loss of water in plants through the transpiration process to the atmosphere. Now, the structure of stoma, guard cells, and the state of the guard cell. As in the main point in the front index, I have told you that the flaccid and the
टर्जिड स्टेट्स ऑफ द गार्ड सेल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कंटेंट में बताया था कि गार्ड सेल्स के स्टेट्स होते हैं दो, एक होता है टर्जिड स्टेट और दूसरा होता है फ्लैसिड स्टेट। टर्जिड स्टेट का मतलब है दैट इज द swelling. It means guard cells can be swelled. When it swells, it means that the water is full in it, and hence the fullness of the cell, the guard cell, is known as the turgid state. As the figure is shown here, the turgid state, that is the stomata opens when the guard cell in turgid state. When the guard cells absorbs water, it swells up and the pores open. जब भी guard cell water के gradient को absorb करते हैं through the turgor, तब उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और वो स्वेल फूल जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर उनका जो एरिया जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, और एरिया एक्सपैंड करने की वजह से स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसी तरीके से सेकेंड स्टेट, दैट इज द फ्लैसिड स्टेट, इन द सेकेंड फिगर आप इसमें देख सकते हैं कि गार्ड सेल्स जब वाटर को लॉस करते हैं देन इट श्रिंक्स, वो सिकुड़ जाते हैं, एंड व्हेन इट श्रिंक्स then it becomes straight and the pores closed. Okay, now how guard cells works? guard cell कैसे वर्क करते हैं? The guard cells are the only epidermal cells with the chloroplasts. guard cells जो होते हैं ये ऐसे स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। दूसरा कोई भी एपिडर्मल सेल क्लोरोप्लास्ट को कंटेन नहीं करता है। इन द डे लाइट व्हेन द स्टोमेटा ओपन्स, जब भी डे लाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर से वो लीफ के अंदर एंटर करता है। इट मीन्स दैट गार्ड सेल टर्जिड स्टेट में है और टर्जिड स्टेट में स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है, स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। एंड व्हेन द स्टोमेटल पोर्स ओपन देन द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक्स प्लेस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लीव्स। ओके, नाउ व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ carbon, that is the fixation of carbon. So chloroplasts which are present in that, they makes the sugar, that is through the photosynthesis process they can prepare the sugar. Second one, the guard cells actively pump in the potassium ions. It means that potassium ions helps the guard cells, the potassium ion helps the guard cells for opening and the closing. Here the figure is given. आप देख सकते हैं कि फिगर यहां पे दिया हुआ है। जब भी स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड enters into the guard cells and the process of photosynthesis starts. Okay, next, mechanism of opening and closing of stomata. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्किंग करता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, इसका मतलब स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और जो क्लोजिंग जो होती है वो गार्ड सेल्स के थ्रू रेगुलेट होती है। ये जो गार्ड सेल्स का जो रेगुलेशन होता है स्टोमेटल पोर्स के लिए, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द टर्गर चेंजेस इन द गार्ड सेल। अब यहां पे ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द टर्गर। टर्गर मीन्स द स्टेट ऑफ टर्जिडिटी और द फुलनेस ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्टेट ऑफ टर्जिडिटी इट मीन्स दैट इज द एंटरिंग ऑफ वाटर और द लिक्विड मॉलिक्यूल्स
Okay, this turgor is due to the endoosmosis process. Due to the endoosmosis process, there is increase in the pressure in the guard cells. गार्ड सेल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है, और जैसे ये प्रेशर इंक्रीज करता है, व्हाट हैपेंस? देन द फ्लो ऑफ द वाटर और द फ्लूइड, I have written here the fluid. Fluid means the water and the dissolved minerals enters into the guard cell from the outside, and this water or the fluid comes from the soil absorbed by the roots, and through the xylem of the roots it reaches to the leaves, that is to the guard cells. Hence the shape of the guard cell changes. जैसे ही ये एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है, गार्ड सेल जो होता है वो अपने शेप को चेंज करता है. इट मीन्स इट स्वेल्स अप एंड इट एक्सपैंड्स. द पोर्स वर ओपन, हेंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर स्टार्ट्स. जैसे ही पोर ओपन होता है, गैसेस का एक्सचेंज शुरू हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर का वो भी स्टार्ट हो जाता है. नाउ ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, अभी हम लोगों ने एंडोऑस्मोसिस के बारे में बात किया. एक्सोऑस्मोसिस इज द रिवर्स ऑफ द एंडोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस, it works on the closing of the stomatal pores. So there is the decrease in the turgor of the guard cells. गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, जिससे वाटर या फ्लूइड जो होता है वो गार्ड सेल्स से लॉस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, एंड हेंस द गार्ड सेल्स चेंज देयर शेप एंड दे श्रिंक्स. वो अपने शेप को चेंज करते हैं और वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर्स क्लोज्ड हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं. Now, important point to be noted here that the exchange of gases through the diffusion process, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है. सेकेंड, जो भी वाटर या फ्लूइड का एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है. Okay, now the function of stomata and the significance. Very important function. It helps in the gaseous exchange to and from the atmosphere. Second one, that is it helps in the transpiration. Third point, it helps in the photosynthesis process and the respiration. जैसा कि पॉइंट्स में क्लियर किया गया है कि स्टोमेटा का फंक्शन और सिग्निफिकेंस बेसिकली है क्या, कि गैसेस को एक्सचेंज करना टू एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जैसे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर स्टोमेटा एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस द ऑक्सीजन. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन. Transpiration means the loss of water. It means the stomatal pores lost the water through the process of transpiration. And third one, it helps in the photosynthesis process. We have already discussed, that is the fixation of the carbon thing, and the fixation of the carbon and the synthesis of the food through the process of respiration. Now, one point another here noted here, the direction of the diffusion depends upon the environmental conditions and the need of the plant. डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के कंडीशंस पे. अगर जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, इट मींस स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अगर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, देन स्टोमेटल पोर्स क्लोज्ड होते हैं. ठीक है, लॉस होता है, ऑक्सीजन आउट होता है. ओके, और ये डिपेंड करता है प्लांट की नीड्स पर. अगर जो प्लांट्स की नीड है कि फोटोसिंथेसिस करना है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेंगे. अगर उसकी नीड नहीं है, दे विल एग्जिट द प्रोसेस. सो
here the all about the stomata. Okay, I think I hope you will understand and you may include these points in your notes. ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको शो किए, एक्सप्लेन किए, ये आपको नोट्स में बहुत हेल्प करेंगे. बोर्ड्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो आपके स्टोमेटा पे बेस्ड होते हैं. जैसे व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोमेटा, द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, हाउ गार्ड सेल्स वर्क. ओके, so these are the questions, you can work on it. आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा. सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल गुड बाय, थैंक यू.